ठीक है. So that is really important to have the confidence. Other than that you cannot speak in front of the people. तो confidence building is really important. इसके साथ साथ मतलब स्पोकन इंग्लिश के साथ साथ हम कुछ एटिकेट्स वाली चीजें प्रोफेशनली जो आपकी बिल्डअप होनी चाहिए उस पे भी हम काम करेंगे. सो दिस कोर्स इज नॉट ओनली फॉर द स्पोकन इंग्लिश बट इट इज ऑल्सो linked with your professional life too, and you will be understanding how to communicate with the people professionally. ठीक है. After that class, why this digital skill center, why you need to work and why you need to learn with us. So that is really important question. Basically digital skill center provides to the trust level जो कि आपको नजर आता है with our 50,000 plus students community पे on our FB group. You can just visit there on our FB group. Sir Hamza has shared you the link. Okay. So there you can see the learning and the earnings things of the students there. Okay. And there is a big community, and after doing the course DSC offer you the certification, that is government approved certification, and also DSC आपको इसके बाद अर्निंग्स अपॉर्चुनिटी देता है जो कि और कोई सेंटर नहीं देता. ठीक है. अब वो अर्निंग अपॉर्चुनिटीज क्या हैं और कैसे मिलेंगी, तो इसके लिए यू विल हैव टू ज्वाइन आवर कोर्स. And this course is not only for the spoken English. This course is related with your communication, with your professional style of talking with the people. Okay. And you can also link with the native English speakers after doing this course. So there are many other benefits to join us. ठीक है. आफ्टर दैट क्लास करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर्स, यहाँ पर हम आपके बारे में बात कर रहे हैं. यू मस्ट बी मोटिवेटेड. ऑफ कोर्स व्हेन यू नीड टू डू द प्रैक्टिस फॉर एटलीस्ट 1 or 2 hours इन अ डे, तो आपको उसके लिए मोटिवेशन चाहिए, टाइम निकालना पड़ेगा. ठीक है. तो ऑल द मेथोडोलॉजी it depends on your motivation, it depends on your time consumption. ठीक है. और लेकिन वो टाइम इंटरेस्टिंग कैसे बनना है वो मैं आपको बताऊंगी. तो यू जस्ट नीड दैट टाइम जिसमें आप अपना सोशल मीडिया स्क्रॉल डाउन कर रहे होते हैं, उसी टाइम को यूटिलाइज करते हुए आप अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे जो मैं आपको बताऊंगी जिस तरह. ठीक है. तो इफ यू आर गोइंग टू फॉलो द गाइडलाइंस प्रॉपरली तो आप कुछ ही दिनों में अपने इंग्लिश में इंप्रूवमेंट फील करेंगे. ठीक है. So class, this is really important thing. And after that, if you want to be proficient in your career, in your profession, in your studies, then this course is of course for you, because you know that with English you can do it. If you are open to feedback, of course, I will be improving you different things here. You will be practicing, and after that, I will be giving you the feedback. So this course will be for you. Now the question is that how much time is required to learn English? Basically, as far as my experience with the previous batch of students, I must say that you just need 2 weeks to improve your English. Okay. Up again the question will be that how is it possible कि 2 हफ्तों में हमारी English अच्छी हो जाए? So class, it is possible because I have told you that this course is designed with my own activities, with my own assignments, with my own, things what I have done to improve my own English for years. Okay. I have gathered everything here. And if you follow the guidelines properly, if you do the practice properly, so you just feel improvement in just a few days in your English. और 2 हफ्ते के अंदर अंदर आप अपनी इम्प्रूवमेंट देखेंगे. एंड इफ यू डोंट बिलीव ऑन मी तो जाइए जरा FB ग्रुप पे. ठीक है. FB ग्रुप पे जाएंगे और वहां पर जाकर किसी भी प्रीवियस बैच के स्टूडेंट का स्पोकन इंग्लिश का असाइनमेंट देखें. हमारा 32 बैच अभी कंप्लीट हुआ है, तो बैच नंबर 32 के ही स्टूडेंट्स का आप असाइनमेंट देख सकते हैं. किसी भी एक स्टूडेंट का असाइनमेंट नंबर 1 से लेके उस पर नंबरिंग हुई होती है. असाइनमेंट नंबर 1 से लेके असाइनमेंट नंबर 6 तक चेक करें और आप ये चेक करें कि उस स्टूडेंट की स्पीकिंग इंप्रूव हुई है कि नहीं, क्योंकि सारे स्पोकन इंग्लिश के असाइनमेंट वॉइस फॉर्म में मिलेंगे, आप वॉइसेस सुन सकते हैं. ठीक है. तो इन द फर्स्ट असाइनमेंट स्टूडेंट्स टॉक लाइक द बिगिनर्स, बट इन द 6th असाइनमेंट दे टॉक लाइक द गुड इंग्लिश स्पीकर्स. ओके. तो those people who do the practice according to the guidelines, they have improved their English in just a few days. ठीक है. So it is really possible, क्योंकि English कोई rocket science नहीं है. English एक language है जैसे हम और आप उर्दू बोलते हैं, बल्कि उर्दू बहुत difficult है. English is an easiest language to learn. That's why it is an international language. Okay. So let's go further. Reading skills आपकी क्या क्या improve होने वाले हैं? Phonics. Okay. Of course, words की sounds. Vocabulary, I have told you about that. Fluency,
comprehension, okay, you must be knowing के what the people are talking, ठीक है, तो आपको वो चीज समझ आएगी। ऐसा नहीं होगा इंग्लिश आपके सर के ऊपर से गुजरती भी चली जाए, बल्कि आपको समझ में आएगा, आप जो भी लर्निंग कर रहे होंगे, जो भी सुन रहे होंगे, ठीक है, आफ्टर डूइंग दिस कोर्स। और एक्टिव रीडिंग क्या है? तो एक्टिव रीडिंग ये है कि आप जो भी रीडिंग कर रहे होंगे वो आप समझ के पढ़ेंगे, सिर्फ रीडिंग नहीं करेंगे बल्कि उसको समझ के पढ़ेंगे। और ये कैसे इंप्रूव होगा, इसकी कुछ ट्रिक्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी, सो दैट यू कैन इम्प्रूव इट। आफ्टर दैट क्लास, स्पीकिंग स्किल्स आपके क्या क्या इंप्रूव होने वाले हैं? प्रोनाउंसिएशन, वोकैबुलरी, फ्लुएंसी, ऑफ कोर्स वी हैव डन अबाउट दैट। ग्रामर आपकी इंप्रूव होगी। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मैंने आपको बताया ये क्यों इंपॉर्टेंट है और हमने क्यों ऐड किया इसको यहाँ कोर्स में। एक्टिव लिसनिंग, लेट्स सपोज क्लास आप ना उर्दू में कोई वीडियो कोई मूवी देख रहे हैं अभी, तो आपको वो मूवी देखने के लिए ना ज्यादा फोकस नहीं लगाना पड़ेगा, आप चलते फिरते भी देखेंगे, आपको मूवी समझ आ जाएगी, ठीक है, उर्दू में मूवी है। अब अगर इंग्लिश में मूवी देख रहे हैं, तो इंग्लिश में मूवी देखने के लिए आपको पहले तो थोड़ा सा बैठ के देखना पड़ेगा, फोकस लगाना पड़ेगा। कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपको समझ नहीं आएंगे, लिसनिंग ही नहीं आपकी समझ आएगी। और कुछ जो है ऐसे वर्ड्स होंगे जो समझ तो आ जाएंगे लेकिन आपको उसकी मीनिंग नहीं पता होगा, तो अब आप उसकी वोकैबुलरी ढूंढेंगे। दिस इज नॉट एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग वो है कि आप सुनते सुनते समझ जाएं, बिकॉज वेन एवर अ पर्सन इज टॉकिंग टू यू इन इंग्लिश, तो क्या एट द मोमेंट यू विल बी वेटिंग और ही विल बी वेटिंग फॉर यू कि आप उसकी बात समझ जाएं और फिर आप उसको रिप्लाई करें? नो। ओके, एक्टिव लिसनिंग ये होनी चाहिए कि वट एवर द पर्सन इज टॉकिंग टू यू, यू जस्ट अंडरस्टैंड दैट एंड आफ्टर दैट यू क्विकली रिप्लाई टू दैट पर्सन। ओके, सो वी विल बी इम्प्रूविंग योर एक्टिव लिसनिंग हेयर। Okay, that is also the important thing what I have added here. And after that class, scope क्या है इंग्लिश का ये देखते हैं। You can improve your communication because this is a psyche of our society that we give value to those people who speak English. Okay, so with spoken English, you can improve your communication personally and in the professional settings too. After that, you have a career advancement. Let's suppose you are a graphic designer, ठीक है, and you are a very good graphic designer, but you do not know how to speak English. ओके, तो अब आप क्या करेंगे, आप सिर्फ लोकल्स के लिए ही काम कर सकते हैं। लेकिन अब जब आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगी आफ्टर डूइंग दिस कोर्स, सो यू कैन जस्ट अप्लाई फॉर द जॉब्स इंटरनेशनली। ओके, यू कैन रीच टू द डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, यू नो, टू योर क्लाइंट्स इंटरनेशनली, एंड आफ्टर दैट यू कैन हैव द कम्युनिकेशन विद दैम। You can just tell them about your expertise, you can take their projects, and after that you can double up your income, triple भी हो सकती है और 4 times भी हो सकती है, क्योंकि अब आप इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पे काम करना शुरू कर देंगे, ठीक है। सो करियर एडवांसमेंट हो सकता है आपका। इफ यू हैव द प्लान्स टू गेट हायर एजुकेशन अब्रॉड, लाइक कहीं पर भी आपने बाहर जाना है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, तो उसके लिए पहले आपको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, बिकॉज विदाउट नोइंग हाउ टू यू नो स्पीक इंग्लिश और हाउ टू लिसन टू इंग्लिश, आप वहां जाके करेंगे क्या? सो दैट्स व्हाई इट इज रियली इंपॉर्टेंट। इफ यू हैव द प्लान्स टू ट्रैवल अब्रॉड लाइक चाइना, ग्रीस, फ्रांस, कहीं पर भी आपने जाना है, तो अगर आप चाइना जा रहे हैं तो आप चाइनीज नहीं सीख कर जाएंगे, क्योंकि चाइनीज एक बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज है। और इसी तरह चाइनीज जो है वो आपकी उर्दू तो कभी भी नहीं सीखेंगे, उर्दू तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज है। लेकिन आप दोनों मिलके क्या कर सकते हैं, यू बोथ कैन टॉक इन इंग्लिश बिकॉज इट इज एन इजिएस्ट लैंग्वेज, इट इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज टू, ठीक है। आफ्टर दैट, स्कोप ऑफ जॉब्स क्या है इंग्लिश स्पीकर्स के लिए? कुछ ही फील्ड्स हैं यहाँ पे, अदर देन दैट देयर आर न्यूमरस फील्ड्स जिसमें आप काम कर सकते हैं एज एन इंग्लिश स्पीकर, ठीक है। बिजनेस में आपको पता है सारा कुछ इंग्लिश में होता है, कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, सो यू कैन डू गुड इन द फील्ड ऑफ बिजनेस। अपने बिजनेस के लिए या किसी दूसरे के बिजनेस के लिए भी आप काम कर सकते हैं। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, इवन इफ यू आर फिजिक्स केमिस्ट्री टीचर, ठीक है, तो तब भी अगर आपको इंग्लिश बोलना आती है, फिजिक्स केमिस्ट्री आप पढ़ाते हैं लेकिन आपको इंग्लिश भी बोलना आती है, so now you can apply to the international institutions, okay, for teaching English, your subject. And after that, you can also do online tutoring because there are many students worldwide who need online tutors. चाहे वो अफ्रीका से भी belong करते होंगे ना वो students, तो उन students को आप English में अपना subject पढ़ा सकते हैं। तो in the field of education, you can do good. जर्नलिज्म और मीडिया में सारा कुछ जो है कम्युनिकेशन पे बेस करता है, और कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली इन उर्दू बट ऑल्सो इन इंग्लिश लैंग्वेज। टेक्नोलॉजी की जो फील्ड है वो एक बहुत एडवांस फील्ड है, इन दैट फील्ड यू कैन डू गुड विद योर इंग्लिश। कस्टमर सर्विस में भी कम्युनिकेशन है सारा कुछ,
So with English and with professional English, you can, go well in this course, in this field. And after that, writing और translation की जो field है, उसमें भी आप अच्छा काम कर सकते हैं. And myself as a content writer, तो आप भी एज ए जो है राइटर के काम कर सकते हैं विद योर इंग्लिश स्किल्स. ठीक है. आफ्टर दैट क्लास कुछ मॉड्यूल्स हैं इस कोर्स में कि हम क्या क्या करने वाले हैं. सबसे पहला जो मॉड्यूल है उसमें हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या है इंग्लिश की इन आवर डेली लाइफ, और बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करेंगे. आई विल बी गाइडिंग यू टुवर्ड्स रियली ट्राइड एंड टेस्टेड टिप्स एंड ट्रिक्स इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ योर कोर्स. और उसके बाद जो है आप उन गाइडलाइंस को फॉलो करके कॉमन स्किल्स अपने बेहतर करेंगे. ठीक है. आगे चलते हैं डेवलपिंग लैंग्वेज स्किल्स. इसमें साउंड्स और स्ट्रेस पैटर्न्स पे बात करेंगे. क्या साउंड्स तो हमने बात की ना अभी, जैसे हमने बात की थैंक यू की, हेल्प की. जस्ट लाइक दैट वर्ड है वाटर, तो आप कहते हैं या आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर. टिपिकल पाकिस्तानी लहजा है, आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर. ठीक है. अब उसके बाद अमेरिकन इसे बोलेगा आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर. बॉर्डर. ओके. वो कह रहा है बॉर्डर. ओके. आफ्टर दैट ब्रिटिश इसे कहेगा आई नीड अ ग्लास ऑफ वोडा. वोडा. ओके. नॉट वोडर, वोडा. वाई? देयर आर सम डिफरेंसेस इन द साउंड्स. ठीक है. सो वी विल हैव टू अंडरस्टैंड. मैं आपको ये पूरी डिटेल्स बताऊंगी एंड दीज आर सो इंटरेस्टिंग इफ यू वांट टू लर्न इट. आफ्टर दैट क्लास स्ट्रेस पैटर्न्स पे बात करें तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें स्ट्रेसेस दिए जाते हैं. लेट्स सपोज द वर्ड इज अ ब्रेकफास्ट. आप कहते हैं या आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट. अंग्रेज कहेगा आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट. अ लिटिल स्ट्रेस ऑन द वर्ड ऑफ ब्रेक, और फास्ट को जल्दी से बोलते हैं ब्रेकफास्ट. ओके. So just like that, you you know the stress patterns. इसी तरह से अगर मैं कह रही हूँ कि there are 12 bananas on the table, तो अंग्रेज कहेगा नहीं, there are 12 bananas on the table. तो why bananas? बनाना क्यों नहीं कहा, उर्दू वाला बनाना क्यों नहीं कहा इन्होंने? तो ये उर्दू वाला बनाना नहीं है, दिस इज इंग्लिश वाला बनाना जिसको कहा जाता है bananas. ओके. सो देर आर सम स्ट्रेसेस ऑन इन ऑन सम वर्ड्स. अब वो क्या स्ट्रेसेस हैं और कैसे इसको पढ़ेंगे ये हम डिटेल्स में पढ़ेंगे कोर्स में. ग्रामर और वोकैबुलरी का जो हमारा मॉड्यूल है इसमें हम देखेंगे कि डिफरेंट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स पे काम करेंगे, वोकैबुलरी बिल्डिंग एक्सरसाइजेस देखेंगे, एवरीडे कम्युनिकेशन और वर्क प्लेस सिचुएशन से रिलेटेड एक्टिविटीज करेंगे बहुत सारी. वी ऑल विल बी कनेक्टिंग ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, सो आई विल बी गिविंग यू स्मॉल एंड इंटरेस्टिंग टास्क देयर. You will be doing that and you can ask me the questions there too. During the Zoom classes your mics will be on and you can take part in the different activities here. बल्कि ऐसे activities होंगी of course because this is the spoken English course. So we will be doing different activities here. You will be taking part here. You will be speaking here. And after that you can ask me the questions too. ठीक है. तो इस तरह से एक interactive class होगी हमारी. आगे चलते हैं. मॉड्यूल 4 में हम देखेंगे how to build fluency and confidence. डिफरेंट स्ट्रैटेजीज पे काम करेंगे टू बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस. रोल प्लेइंग एक्सरसाइजेज होंगी, ग्रुप डिस्कशंस हो रही होंगी, प्रेजेंटेशंस हो रही होंगी. ठीक है. उसके बाद क्लास लास्ट जो हमारा मॉड्यूल है वो ये है कि सोशल इंटरेक्शन आपने कैसे करनी है. यानी कि जो इफ यू आर गोइंग टू टॉक विद नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स तो आपको पता होना चाहिए कि उनसे बात कैसे करनी है, बिकॉज जिन लोगों को इंग्लिश आती है वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं इस मामले में. तो दैट्स व्हाई आई विल बी गाइडिंग यू टुवर्ड्स really tried and tested things there. ठीक है. So you will be following that and after that we will be having some strategies for the effective communication skills जो कि आपको प्रोफेशनली भी काम आएंगे. Now class, thank you so much from my side. Hopefully you enjoy this demo. Rest of the things our CEO will be guiding you. Okay. Thank you. Yes, guys. Meanwhile, if you have any questions, so you can ask me the questions in the chat box. ऑल राइट मैम. अच्छा मतलब आपके जो मजीद जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ठीक है उनके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ. ठीक है. फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कुछ. तो क्या ये कोर्स अब मोबाइल के थ्रू हो सकता है? तो बिल्कुल ये कोर्स आप मोबाइल से कर सकते हैं. इसके लिए आपके पास ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो तभी आप इस कोर्स कर सकते हैं. अगर आपका मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है तो आप इंग्लिश लैंग्वेज का ये कोर्स है तो आप इसको इजीली कर सकते हैं. अच्छा आप मजीद बात कर लेते हैं कि कोर्स आपका स्टार्ट कब से होने जा रहा है. कोर्स आपका स्टार्ट जो है वो 27 जुलाई से स्टार्ट होने जा रहा है. सिर्फ 2 दिन रह गए हैं. सही है. और अच्छा ये भी आपको बता दिया मैंने. अच्छा आप स्कॉलरशिप में आपने एडमिशन कैसे लेने हैं
तो उस हवाले से भी मैं आपको बताता चलूँ, तो ये जो कोर्स है, लेट मी शो यू। अच्छा, ये अच्छा, ये जो कोर्स है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का सर्टिफाइड कोर्स है। इसकी 1 मंथ ड्यूरेशन है, और इसकी जो हम रेगुलर में फी चार्ज कर रहे हैं वो 2000 रुपीज़ है, 2000। लेकिन क्योंकि आप लोग राइट नाउ पाकिस्तान के सबसे बड़े फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में मौजूद हैं, जहां पर हमारी ट्रेनिंग टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ट्रेनिंग का हम कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे हैं, जस्ट एक मिनिमम से अमाउंट चार्ज कर रहे हैं जो ट्रेनिंग फीचर्स की है, जिसके ऊपर हमारी खुद की कॉस्ट आती है। ठीक है, जो ऑलरेडी मैंने बताया, लाइक गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन आपको देते हैं, मेंटोर सपोर्ट देते हैं, रिकॉर्डिंग्स देते हैं, Q&A सेशंस देते हैं। इसके अलावा अर्निंग अपॉर्चुनिटी की श्योरिटी आपको दी जाती है, सिर्फ उसका हम चार्ज करते हैं। तो क्या अमाउंट हम चार्ज कर रहे हैं, वो कोई 2000 नहीं है, ना 1800, ना 1500, ना 1200। अब क्या इंग्लिश लैंग्वेज के इस कोर्स के हम अमाउंट चार्ज कर रहे हैं, तो उसके अंदर DSC स्कॉलरशिप सेशन में हमारे पास 25 सीट्स थी, लेकिन आज हमने 50 सीट्स दी थी। उसमें से अभी हमारे पास आखिरी जो है वो 17 सीट्स रह गई हैं। 33 सीट्स ऑलरेडी फिल हो चुके हैं, क्योंकि इससे पहले हमारे जो है वो 4 सेशन हो चुके हैं, जिनमें हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया और अपने एडमिशन करवाए। अभी सिंगल कोर्स में अगर आप इनरोल होते हैं, लाइक सिर्फ स्पोकन इंग्लिश में, तो उसकी जो स्कॉलरशिप में हम फी चार्ज करेंगे वो 1000 होगी। लेकिन अगर आप मल्टीपल कोर्सेज, दो या दो से ज्यादा कोर्सेज में इनरोल होते हैं 1 मंथ वाले, तो उसके अंदर हम जो आपसे अमाउंट चार्ज करेंगे वो 750 होगी। मतलब दो कोर्सेज का 1500 होगा, तीन कोर्सेज का 2250 होगा, चार कोर्सेज का 3000 होगा। ठीक है, 1 मंथ वाले। अब 1 मंथ वाले, अब आपको ये नहीं आइडिया होगा 1 मंथ वाले हमारे कौन से कोर्सेज हैं, तो उसमें मैं वंस अगेन बता दूं। 1 मंथ वाले हमारे कोर्सेज में सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स है, ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स है, कंटेंट राइटिंग का कोर्स है, और स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है। फॉर एग्जांपल, आप कंटेंट राइटिंग और स्पोकन इंग्लिश दो कोर्सेज में इनरोलमेंट करवा रहे हैं, तो फिर आपकी एक कोर्स की फी जो है वो 750 के लिहाज से होगी, मतलब दो कोर्सेज की 1500। लेकिन अगर आप सिर्फ एक कोर्स में करवा रहे हैं तो फिर उसकी 1000 रुपये होगी। ठीक है। अब कौन कौन से ट्रेनिंग फीचर्स हैं बेसिकली जो इसमें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसमें आपको मेंटोर की व्हाट्सएप सपोर्ट दी जाती है, टास्क एंड असाइनमेंट बेस्ड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा लाइव मेंटोर सपोर्ट दी जाती है। ठीक है, अर्निंग अपॉर्चुनिटी की सबसे मेन चीज, आपको पाकिस्तान का वाहिद इदारा जो अर्निंग अपॉर्चुनिटी की 100% गारंटी देता है। यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं हमारी इस पेड कम्युनिटी के अंदर। अभी लेटेस्ट हमने जो अपने इनरोल्ड स्टूडेंट्स थे उनको जो है वो अपॉर्चुनिटी दी है, और यहाँ पे देखें, कोई एक नहीं, दो नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, हमारे साथ कितने लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया और काम कर रहे हैं, 925। ठीक है, तो आप खुद जाके देख सकते हैं। फिर इसके अलावा आपको जो है वो सर्टिफिकेशन जो दी जाती है वो गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेट्स हम दे रहे होते हैं। फिर इसके अलावा टॉप रेटेड ट्रेनर होते हैं जो ट्रेन कर रहे होते हैं, लाइव सेशंस होते हैं, साथ हर लेक्चर की आपको रिकॉर्डिंग्स हम प्रोवाइड करते हैं। फिर क्वेश्चन आंसर के सेशन अलग से दिए जाते हैं, टूल्स फ्री होते हैं, सॉफ्टवेयर फ्री होते हैं, और ग्रुप डिस्कशन होती हैं। ये वो तमाम ट्रेनिंग फीचर्स हैं बेसिकली जिसका हम आपसे चार्ज कर रहे हैं, और क्या ही अमाउंट चार्ज कर रहे हैं, जस्ट 1000 रुपीज, या अगर आप मल्टीपल कोर्सेज में आते हैं तो 750 के अकॉर्डिंग। ठीक है, जिसमें शायद एक अच्छे ब्रांड का जिंगर बर्गर तक नहीं मिलता आज के दौर के अंदर। तो अब जो लोग इनरोल होना चाहते हैं, जिनसे आपने आज के सेशन का लिंक लिया है, जाएं, उनको जाके मैसेज करें कि आप सेशन में प्रेजेंट हैं और आप स्कॉलरशिप के अंदर इनरोल होना चाहते हैं। इससे पहले कि हमारी सीट्स एंड हो जाए स्कॉलरशिप में, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट, सैकड़ों की तादाद के अंदर हर सेशन के अंदर लाइव मौजूद हैं, कई सेशंस के अंदर हजारों में और कई सेशंस में सैकड़ों में। तो इससे पहले सीट्स एंड हो जाए स्कॉलरशिप में, अपने एडमिशन्स फौरी तौर पर जिनसे लिंक लिया है उनसे कंफर्म करवा लें, क्योंकि ऑलरेडी हम जो है वो पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा फ्री स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो ऑफर कर रहे हैं। ये याद रखें, ये इट्स नॉट जस्ट अ कोर्स, ये प्रॉपर आपका पूरा कैरियर है, जिसमें आपको ये सारे फीचर्स मिलते हैं, मेंटोर सपोर्ट से लेकर रिकॉर्डिंग्स तक। ठीक है, Q&A सेशन से लेकर फ्री सॉफ्टवेयर तक। ठीक है, अर्निंग अपॉर्चुनिटी से लेकर आपको जो है वो गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन तक। ठीक है, व्हाट्सएप सपोर्ट होगी, टास्क होंगे, असाइनमेंट्स होंगी, टॉप रेटेड ट्रेनर्स होंगे, हमारी सपोर्ट टीम होगी। ऑल राइट। सो जितने भी लोग जिन्होंने अभी तक अपना एडमिशन कंफर्म नहीं करवाया स्कॉलरशिप के अंदर, अब आपने सीट अपनी कैसे कंफर्म करवानी है, जिनसे आपने आज के सेशन का लिंक लिया था, जाएं, उनको जाके मैसेज करें कि आप सेशन में प्रेजेंट हैं और आप स्कॉलरशिप में इनरोल होना चाहते हैं। वो आपके साथ अकाउंट की डिटेल्स शेयर कर देंगे, उनमें से किसी पे भी फीस सबमिट करवाएं, उनको स्क्रीनशॉट भेजें, तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। ऑल राइट जी। अब यहाँ पे मैं आप सब लोगों के साथ एक इंग्लिश लैंग्वेज के इस कोर्स की जो है वो, अच्छा, कुछ लोग पूछ रहे हैं मैसेज किसे करना है, जिन्होंने आपको, जिनसे आपने लिंक लिया था, ठीक है, जिन्होंने आपको गाइड किया था, आपने मैसेज उनको करना है। ऑल राइट, ये मैं वंस अगेन बता दूं। अच्छा, आपने किसी ना किसी ग्रुप में लिंक लिया होगा, उस ग्रुप के अंदर जिन्होंने आपको लिंक दिया उनको अपने इनबॉक्स में जाके मैसेज करना है, पर्सनल इनबॉक्स में जाके मैसेज करना है, वो आपका एडमिशन कंफर्म कर देंगे। इससे पहले सीट सेंड हो जाए, अपने एडमिशन कंफर्म करवा लें। अब यहाँ पे मैं आप सब लोगों के साथ इंग्लिश लैंग्वेज के जो है वो कोर्स की कोर्स सिलेक्शन स्टूडेंट गाइड शेयर कर देता हूँ। अगर आप स्पोकन इंग्लिश के कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं तो आपको मेंटोर रिकमेंड करती हैं कि आप साथ कैनवा के कोर्स में, ग्राफिक डिजाइनिंग में और सोशल मीडिया मार्केटिंग में, इन कोर्सेज में अपना एडमिशन लाजमी कंफर्म करवाएं। ठीक है, टोटल इन चार कोर्सेज की जो हमारी रेगुलर में फी बनती है
वो 14,000 है। अगर मैं बात करूं स्कॉलरशिप के अंदर तो इनकी 5,000 फी बनती है, 5,000, लेकिन यहाँ पर स्पेशल ऑफर के तहत आपको जो है स्कॉलरशिप से भी ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, जस्ट 3,500 रुपीज में आप इन चारों कोर्सेज में इनरोल हो सकते हैं, गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, मेंटोर सपोर्ट ले सकते हैं, रिकॉर्डिंग्स ले सकते हैं, Q&A सेशंस ले सकते हैं। ठीक है। और ये वो कोर्सेज आपको रिकमेंड किए जाते हैं जो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, इसीलिए आपको इनकी रिकमेंडेशन दी जाती है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। कैनवा, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्स के साथ आप जो है कुछ ऐसे स्किल्स भी सीखें जिनसे आप मेन अर्निंग कर सकें, उसमें कैनवा है, ग्राफिक डिजाइनिंग भी उससे रिलेट करता है। और सोशल मीडिया मार्केटिंग तो हर स्किल के साथ हमने आज रिकमेंड किया है, क्योंकि सोशल मीडिया मार्केटिंग ना हो तो कोई भी चीज़ बिक नहीं सकती। आपको अर्निंग करने के लिए अपनी स्किल्स को या अपनी जो है वो सर्विसेज को बेचना जरूर पड़ता है, याद रखिएगा। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये डीएसए की हिस्ट्री की अब तक की सबसे बड़ी डिस्काउंटेड डील, और आज पता नहीं कई स्टूडेंट्स जो है वो इस डील को अवेल कर चुके हैं अब तक। ठीक है। ये हमारी डील है, अगर कोई स्टूडेंट हमारे 8 के 8 कोर्सेज में इनरोल होता है तो 8 के 8 कोर्सेज के ऊपर हम इनको फ्लैट 80% ऑफ देंगे। टोटल 8 कोर्सेज की फी बनती है 52,000, लेकिन 52,000 की जगह जस्ट 10,400 रुपीज में आप 8 के 8 कोर्सेज में इनरोल हो सकते हैं। इनकी गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, मेंटोर सपोर्ट ले सकते हैं, रिकॉर्डिंग्स ले सकते हैं, Q&A सेशंस ले सकते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा आप अर्निंग अपॉर्चुनिटीज ले सकते हैं, सारी चीजें। लेकिन यहाँ पर आज हम आपको 10,400 से भी काफी कम अमाउंट के अंदर ये 8 के 8 कोर्सेज ऑफर करने जा रहे हैं। वो 10,000 हो सकता है 9,000 हो सकता है 8,000 हो सकता है 7,500 हो, लेकिन उसके लिए आपने जिनसे लिंक लिया है आपने उनको मैसेज करना है। हमने उनको वो अमाउंट बताई हुई है, जो लोग उनको मैसेज करेंगे DSC 8 कोर्सेज डिस्काउंट का, तो वो आपको बता देंगे कि कितने अमाउंट के अंदर आपको ये 8 के 8 कोर्सेज मिल सकते हैं। ठीक है। तो मैंने आपके साथ जो है वो मैसेज लिख दिया है चैट बॉक्स में। आप एग्जैक्टली ये मैसेज हम उनको मैसेज करेंगे, वो समझ जाएंगे स्टूडेंट लाइव मौजूद था, एक्टिवली इसने सेशन को लिया है। ये हमारी बेसिकली 80% ऑफ के ऊपर मजीद एक समर वेकेशन एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है, जिसमें हम आपको 10,400 से भी काफी कम अमाउंट में 8 कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, और आज बहुत से स्टूडेंट्स को अवेल कर चुके हैं। ठीक है। अब वो एग्जैक्ट अमाउंट मैं नहीं बताऊंगा, हमारी टीम बताएगी। सो जितने भी लोगों ने इसके अंदर इंटरेस्ट शो किया हुआ है वो जाएं, उनको जाके DSC 8 कोर्सेज डिस्काउंट का मैसेज करें, तो एग्जैक्टली वो अमाउंट आपको बता देंगे और आपका एडमिशन कंफर्म कर देंगे। मजीद कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, जिनसे लिंक लिया उनसे कांटेक्ट आप कर सकते हैं, अपनी कैरियर काउंसलिंग ले सकते हैं। और नेक्स्ट सेशन जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वो सोशल मीडिया मार्केटिंग का है। ठीक है। आपके प्रोफेशनल करियर्स के लिए बहुत जरूरी है, उसमें मिलते हैं इंशाल्लाह। विल सी यू इन आवर कोर्स। बाकी इससे पहले कि सीट सेंड हो जाए अपने एडमिशन्स भी लाजमी कंफर्म करवा लें। विल सी यू। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।